Hello students, in this session we are going to discuss the tricks to find out the bond order, hybridization and the magnetic nature. As we have already done the theoretical part, we have finished the chemical bonding and molecular structure chapter, and like if a question comes in your exam that tell the whether the given compound, whether the given atom is the paramagnetic or diamagnetic, क्या करोगे आप उसके लिए? You need to draw complete structure, molecular orbital theory के accordingly. And then वो बनाने के बाद आप ये देखोगे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर आप आंसर करोगे. अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो लाइक इन योर एंट्रेंस एग्जाम, so it is going to take a very much time for that. It will be a very time consuming. So let's first of all discuss with the trick to find out the trick to find paramagnetic and diamagnetic nature. Okay. Now in this thing, you need to keep remember a few points only in this matter, and then it is very easy to give an answer. The very first point which you need to keep in mind, all odd electrons and 10 electrons and 16 electrons species will be paramagnetic in the nature. Second, all even number electron species will be diamagnetic in the nature. आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, आपको odd and even याद रहेगा. Just remember about the 10 and 16. Odd, 10 and 16. जिस भी स्पीशीज के पास ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, आंख बंद करके उसे पैरामैग्नेटिक लिखते हैं. और जिसके पास भी इवन नंबर आता है, other than the 10 and 16, that will be diamagnetic. Let's look over here. He2 plus. He2 plus का मतलब क्या हो गया? दो हीलियम्स हैं, तो 2 plus 2, एक प्लस है, it means -1. So it is going to be what? 4 minus 1. That is 3. Now your 3 is what? It is a odd number. Therefore helium will be your what? Paramagnetic in the nature. Li2. In the case of the lithium, each lithium is having the 3 electrons. So 3 plus 3, it comes to be a 6. 6 is what? It is an odd or even? It is an even number. Therefore it will be a diamagnetic in nature. Another example, O2. Each oxygen is having the 8 electrons. Therefore 8 plus 8, 16. Over here I have told 16 electrons means paramagnetic. Now if you do not believe on this trick, so you can go ahead for the molecular orbital structure also and just find out that whether it is this trick is applying over there or not. Another one, like take CO plus. अब CO plus टाइप का अगर आया तो कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
प्लस, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक प्लस का साइन है, देखो -1, 14, 6 plus 8 is 14, 14 minus 1, 13, 13 is the odd number, therefore it is going to be a paramagnetic. सिंपल हो गया. जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो, अगर 1 mark का क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो इफ अ टीचर गिव्स, देन ऑल्सो नो नीड टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपको ना ही इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, ना ही आपको ऑर्बिट शो करने हैं, एंड यू जस्ट फाइंड आउट जस्ट ये दो सिंपल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. All odd electrons, 10 electron and 16 electron species, and all even number of electrons. Only this much. Okay. Now the second trick for us comes is of the trick number 2. Trick to find bond order in molecules having electrons having more than 20 electrons. फिर सपोज आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है कि उसके पास 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगेन क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें काउंट करने पड़ेंगे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन. तब 20 से ज़्यादा है तो कितनी प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो गई, 1s2 2s2 3s2, फिर सारा आपको करते हुए जाना होगा. सो इन दिस केस your trick 1 and trick 2. Trick 1 में क्या है, bond order, BO stands for the bond order, is equal to 1 plus number of pi bonds divided by number of sigma bonds. And in the case of the trick 2, bond order is equal to the number of bonds between any two atoms in all resonating structure divided by total number of resonating structure. ओके. अब मैं दोनों ही उसके लिए एक सिंगल केस ले रही हूँ, एक सिंगल एग्जाम्पल ले रही हूँ. एग्जाम्पल आई एम टेकिंग CO3 2-. ओके. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे बताना है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेम्बर, आपके पास दो एटम्स हैं कोई भी A एंड B, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड कंडीशन में डबल बॉन्ड है, थर्ड कंडीशन में यू आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड. Whenever there is a presence of a single bond, it means there is one sigma bond. Whenever there is the presence of double bond, then means one sigma and one pi bond. And whenever there is the presence of the triple bond, it means one sigma and two pi bond. Okay. अब अगर इतना छोटा सा आपके पास कोई स्ट्रक्चर आता है, अगर एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. दो बॉन्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, एंड तीन बॉन्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3.
It is very easy to do, isn't it? Now over here हमारे पास तो मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए, तो आपका सेंट्रल मेटल एटम इज द कार्बन. ओके, कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? टेट्रावैलेंस. तीन ऑक्सीजन हैं, दो माइनस के साइन है. ओके, अब दो बॉन्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? वन सिग्मा वन पाई. एक का मतलब वन सिग्मा, और यहाँ पे भी वन सिग्मा. देयरफॉर फॉर्मूला में पुट करो, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? वन. सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? थ्री. देयरफॉर वन प्लस 0.33 which is equal to 1.33. 1.33 आया ये. इसका आप राउंड ऑफ करके यू कैन टेक इट एज अ 1. ओके, नेक्स्ट ट्रिक मैंने बोली कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. अब हमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने ही नहीं आते हैं. हम क्या करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ PO4 माइनस. ओके, अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं बनाने आते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि कौन सा एटम की वैलेंसी क्या है. ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं. फॉस्फोरस 1 2 3 4 5. चार ऑक्सीजन है, 1 2 3 4. ओके, अब हमें ये भी नहीं पता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं इसमें. ठीक, अब देखो, जब भी ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात आती है, तो जितने बॉन्ड होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ पे हमें कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं? चार. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? चार. कैसे? एक तो स्ट्रक्चर ये खुद ही हो गया. अब ये बॉन्ड जो है मेरा, यहाँ की बजाय यहाँ भी हो सकता है. दो स्ट्रक्चर हो गए. यहाँ की बजाय यहाँ पे भी हो सकता है. तीन स्ट्रक्चर्स हो गए. और यहाँ भी हो सकता है, तो चार स्ट्रक्चर्स हो गए. अब सिंपल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो आपका फॉर्मूला क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 4. 5 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हो गया आपका 1.25. इसको आप ले सकते हो 1. गॉट इट? In this manner, you can calculate the bond order for the molecules having more than 20 electrons. ये condition आपको याद रखनी है. जब भी आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो you need to apply this formula. Means either of the two formulas. चाहे आप ये अप्लाई करो, चाहे आप ये अप्लाई करो. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं आपको, तो जो उसकी वैलेंसी है वो बॉन्ड्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने बॉन्ड्स हो गए उतने नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चर्स हो गए. ओके, अनदर ट्रिक. ये तो हो गए 20 वाले, कि अगर आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब कुछ कंडीशंस ऐसे आती हैं हमारे पास. ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ओके, अब इसमें आपको एक स्केल याद रखना है. क्लियर?
ओके, अब देखो इस केस में क्या है आपका, से सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। 14 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 3। इट विल बी अ बॉन्ड ऑर्डर। गेट्स द पॉइंट ओवर हियर कि जितनी उसकी वैल्यू आई उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? अनदर एग्जांपल लेट्स टेक, मान लो मेरे पास आ जाता है O2 प्लस, 2 ऑक्सीजन है 16, 8 प्लस है -1 15। 15 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 2.5 विल बी द बॉन्ड। गॉट इट? सिंपल, आपको ये याद रखना है 3 से लेके 0 तक की 0.5 के डिफरेंस में, 8 से 14 एंड देन 14 से 20। अगर किसी का सम टोटल 13 या 15 आता है इट इज गोइंग टू बी 2.5, 12-16 के केस में 2.0, 11 to 17 के केस में 1.5, 10 and 18 के केस में 1.0, 9 and 19 के केस में 0.5 and 8 या 20 आता है तो 20। नाउ व्हाट अबाउट लेसर देन 8? अगर आपके पास लेस देन 8 आ जाता है, लेस देन 8 के केस में 5 6 3 2। ओके, 4 के केस में 0, 0.5 एंड 1.0। क्लियर? से सपोज आपके पास आ रहा है Li2, 3 प्लस 3 6, 6 की वैल्यू पड़ रही है 1 पे, बॉन्ड ऑर्डर विल बी द 1। ऐसे भी नहीं करना है तो लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल का बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी द 1। गॉट इट? दिस इज द वे वी फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। देन I talked about the hybridization. For the hybridization, just remember this thing, counting 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2. If you are having a electrons 6, sp3, sp3 d2, 5 sp3 d, 4 sp3 sp2 and sp। गॉट इट? ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, चाहे आप उल्टा याद करो चाहे आप सीधा याद करो। 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2। अगर आपका कोई sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इट इज गोइंग टू हैव अ p pi p pi। If any molecule is sp2 hybridized then it is going to have a p pi p pi and p pi d pi। If any molecule is the sp3 hybridized then it is going to have a d pi d pi। Got it? थोड़ा सा इससे भी do a related questions also। इसमें the question, multiple type of the question that we get over here is what? Consider the
following species Cn plus, Cn minus, NO and Cn minus. Which one of them will have highest bond order? अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, Cn plus, Cn minus, NO, Cn. ओके, कार्बन के पास कितने हैं? 6, नाइट्रोजन के पास 7, -1. 6 plus 7 plus 1, 7 plus 8, 6 plus 7, 13 minus 1, 12, 14, 15, 13. Okay, now in this case जो आपका स्केल था, when we was having the 12, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 2. 14 के केस में 3, 15 के केस में it was 2.5 and 13 के केस में bond order was about I think 3, 2.5 and 2.5. Okay, it has asked us कि किसका highest bond order है, तो highest bond order is this, means your Cn minus is the answer. Clear? जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, this is a simple trick to find out. Okay, now another type of the question. आपको क्या आ सकता है? In the structure of ClF3, the number of lone pairs of electron on central atom Cl is, options हैं आपके पास 1, 2, 4, 3. अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप पूरा थ्योरी वाला पार्ट अगर अप्लाई करोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सिंपल. क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 287. So what I do, just valence electron we consider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछा है मुझसे. ClF3 है, 3 पे F आ गए, isn't it? It means मेरा एक पेयर ये वाला बचा, एक पेयर ये वाला बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना के एक लोन पेयर बनाते हैं. तो it is the one lone pair, it is the another lone pair. Okay, तो मेरे कितने लोन पेयर्स हो रहे हैं? टोटल में 2. So my answer is 2. On the basis of this only you find out the hybridization कि अगर 2 आया तो sp हो जाएगा, अगर 6 आया तो sp3d2 हो जाएगा and etc. क्लियर? एक और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लाइक दिस. एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ. Which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural? Okay, A option में I am having TiI2 XCF2, B option में IF3 XCF2,
सी ऑप्शन में IBr2 माइनस XCF2, डी ऑप्शन में BeCl2 XCF2। ओके, अब यहाँ पे कैसे करना है? सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप ट्रिक लगाएंगे टू काउंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कौन कौन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं? TeI2 है, XCF2 है और आपके पास एक IBr2 है। ओके, इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6 + 7 + 7 20 इलेक्ट्रॉन। XCF2 में कितना हो जाएगा? 8 + 7 + 7 22 और IBr2 के अंदर कितना हो जाएगा? 7 + 7 + 7 -1 है, तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव अ +1 22। अब हमें ये तो पता लग गया, इट मीन्स दैट इट इज अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इजंट इट? हमें ये पता लग गया है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। आइसोस्ट्रक्चर तो हमें तभी पता लग पाएगा ना। अब इसमें आयोडीन, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 4 5 6 7, एक Br, 2 Br, यहाँ पे माइनस भी था तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। अब लेट्स लुकिंग द लोन पेयर, 1 Lp 1 Lp एंड 1 लोन पेयर। अब ये बॉन्डेड हो गए और 3 लोन पेयर्स हो गए आपके पास यहाँ पे। इट मीन्स क्या हो गया? दिस कम टू 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या हो गया? इट इज गोइंग टू हैव अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? XCF2। XCF2 के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 दो फ्लोरीन्स हैं। दिस इज द वन लोन पेयर एंड वन लोन पेयर। अगेन क्या हो गया आपके पास? 2 + 3, टोटल कितने आ गए? 5 पेयर। इट मीन्स sp3d। अब इट मीन्स के आपका आंसर क्या हुआ? ये। अब अगर जो हमने थ्योरी पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी आर गोइंग टू रन, सो इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इट मीन्स क्या इससे पता लग रहा है हमें? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस ऑल थिंग? दैट वी शुड बी वेरी फेमिलियर विद द एटॉमिक नंबर्स। हमें ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है तो very easily you are able to write down all the answers. Okay, these three type of the MCQ type of the questions we get from this much part. Now on the basis of this I give you the two questions. You just do two questions I am providing you. The question number 1, which of the following pairs of ions is isoelectronic and isostructural? A part CO3 2 minus NO3 minus
SO3 minus NO3 minus ClO3 minus SO3 2 minus ClO3 minus CO3 2 minus. And the second question, species having bond angle 120 degree. A part ClF3, NCl3, BCl3 and PH3. अब देखो बेटा, whenever the question comes for the bond angle also, you just need to find out the hybridization only. Hybridization अगर आपको पता है then you can find out the bond angle. See suppose अगर BCl3 का आपको निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के पास Cl है, तो टोटल नंबर कितना हो गया इसका? बोलिए, in this case, BCl3 के केस में 1 2 3, isn't it? So in this manner you are going to find out the बोरोन के केस में कितने हो गए आपके पास, सॉरी दो, तो कितना हो गया आपके पास? 3 ये हो गए, एक ये लोन पेयर हो गया, टोटल नंबर क्या आ गया आपका? 4. 4 का मतलब क्या हो गया? sp3. sp3 का मतलब क्या हो गया? टोटल आ गया आपके पास 4. 4 का मतलब हो गया sp3. sp3 का मतलब हो गया आपका बॉन्ड एंगल 120 degree. Got it? So just practice out the few questions from this portion. In this manner, it would be easy to do like this in the exam. The basic thing is what? The concept. Read the concept from the theoretical part and apply the concepts over the test. So, good day all.